নমস্কাৰ 10টাকৈ গ্যাৰান্টি দিল্লীবাসীলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই 10টা গ্যাৰান্টি মৃত্যু হলেও পূৰণ কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পিছে কি এই গ্যাৰান্টি সবিশেষ জনাম বিস্তৃত ৰূপত টাইমিটৰ দৰ্শকক আম আদমি পাৰ্টিৰ 10টাকৈ গ্যাৰান্টি দিল্লীবাসী 10টা গ্যাৰান্টি প্ৰদান কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে যিকোনো প্ৰকাৰে 10টা গ্যাৰান্টি পালন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই 10টা গ্যাৰান্টি কি 15 বছৰে বিজেপিয়ে দিল্লীক প্ৰবঞ্চনা কৰি অহা বুলি অভিযোগ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আম আদমি পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা সংবাদমেল যোগে 10টাকৈ গ্যাৰান্টিৰ কথা কোৱা হৈছে দিল্লীবাসীক 10টা গ্যাৰান্টি দিছে এই 10টা গ্যাৰান্টি কি সেয়া জনাই আছো টাইমিটৰ দৰ্শকক অত্যাধুনিকভাৱে সুন্দৰ কৰি তোলা হ'ব দিল্লী এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্নীতিমুক্ত কৰি তোলা হ'ব দিল্লী কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি নাথাকিব দিল্লী পাৰ্কিংৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব দিল্লীবাসীৰ যি এক সমস্যা পাৰ্কিংৰ ক্ষেত্ৰত সেই সমস্যা অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পদপথত ঘূৰি ফুৰা কুকুৰ আৰু গৰুৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব কেজৰিৱাল চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰা বাট পথসমূহ অতি সুন্দৰকৈ মেৰামতি কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল আৰু অধিক সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দিল্লীৰ বাগিচাসমূহক ভালদৰে পৰিচালনা কৰা হ'ব ভালদৰে চোৱা চিতা কৰা হ'ব বাগিচাবোৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেজৰিৱালে আৰু সময়ত অহা সকলো কৰ্মচাৰীয়ে সময়মতে দৰমহা লাভ কৰিব যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে সময়মতে অফিচলৈ আহে তেওঁলোকে সময়মতে দৰমহা লাভ কৰিব সিল কৰা দোকানসমূহ খুলি দিয়া হ'ব আৰু ইন্সপেক্টৰ ৰাজ বন্ধ হ'ব পদপথত দোকান দিয়া লোকসকলক বিশেষভাৱে সকাহ দিব দিল্লী চৰকাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে 10টা গ্যাৰান্টি সন্দৰ্ভত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু এই সংবাদমেলৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল এই গ্যাৰান্টিসমূহ দিয়া হৈছিল যি গ্যাৰান্টি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মৃত্যু হলেও পূৰণ কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল এই সংবাদমেলত কি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো টাইমিটৰ দৰ্শকক आज हम ये 10 गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी सबके ऊपर काम चल रहा है काम किया कई गारंटी पूरी की कई गारंटियों पे काम चल रहा है ऐसे ही एमसीडी की भी सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे पहली गारंटी है दिल्ली को सुंदर बनाएंगे बहुत दुख होता है चारों तरफ कूड़ा कचरा कूड़े के पहाड़ कूड़ा ही कूड़ा है कीचड़ नालियां भरी पड़ी हैं दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे कोई भी आएगा खुद के लिए भी गर्व की बात होगी साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे मन लगेगा और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया अब पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे दूसरी अभी इन्होंने कई प्लानिंग कर रखी है कोई कह रहा 16 नए पहाड़ बनेंगे कोई कह रहा 20 बनेंगे कोई कह रहा 25 क्योंकि जो मौजूदा तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है वो अनस्टेबल हो गए हैं वो गिर सकते हैं टूट सकते हैं अनसेफ हो गए हैं तो अब ये नई जगह ढूंढ रहे हैं नई लैंडफिल साइट्स के लिए मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो खत्म करेंगे ही करेंगे कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा और कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है पूरी दुनिया कर रही है हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे पेरिस से बुलाएंगे टोक्यो से बुलाएंगे ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे
ऐसा क्या है? नियत होनी चाहिए, इनकी नियत खराब है। सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई करेंगे। बहुत गंदी रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती। अपने जुझारू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके हम सड़कों और गलियों की शानदार सफाई करेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं, उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक्शे पास कराने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे, ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े। जैसे दिल्ली के विभागों में हमने किया, कई सारे डिपार्टमेंट ही बंद कर दिए, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको किसी दलाल के चक्कर नहीं काटने, किसी अफसर के चक्कर नहीं काटने, घर बैठे सारा काम हो जाता है। ऐसे ही नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल किया जाएगा। हम जानते हैं कि कोई नई बिल्डिंग बने, हर लेंटर पे पर लेंटर पैसे देने पड़ते हैं। ये बंद होगा, कोई पैसे नहीं लेगा, और अगर कोई पैसे लेगा तो जेल जाएगा। तीसरा, कई लोगों ने दिल्ली में परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे वायलेशन कर लेते हैं, किसी ने छज्जा आगे कर लिया, किसी ने थोड़ा सा वो आगे कर लिया, उसके ऊपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो एक इसके ऊपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मोटे वायलेशंस किए हुए हैं लोगों ने, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त छोटी मोटी फीस या पेनल्टी ले लेंगे और सब लोगों का वो रेगुलराइज हो जाएगा, ताकि जनता को किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना होना पड़े। पार्किंग की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये तीसरी गारंटी है, पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका स्थायी और व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा। चौथा, आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। आवारा कुत्ते हैं, गायें हैं, बंदर हैं, इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। पांचवां, जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, दोबारा बनवाएंगे। छठा, नगर निगम के स्कूलों की और नगर निगम के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की भी बहुत बुरी हालत है। दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए, उसी तर्ज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे। सातवां, जितने पार्क हैं नगर निगम के, उतना बुरा हाल है पार्कों का। दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, सुंदर साफ सुथरे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा। आठवां, जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और अभी कई कई महीनों तक कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती, सबके अकाउंट में पहले हफ्ते के अंदर 7 तारीख के पहले अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। कहीं से लाऊं मैं पैसे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि हर कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह मिलनी चालू हो जाएगी। 9वां, व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूं, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। कन्वर्जन फीस के नाम पे आपसे पैसे वसूले गए, पार्किंग फीस के नाम पे पैसे वसूले गए, ये खत्म कर देंगे कन्वर्जन फीस और पार्किंग फीस। और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाएगा और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोला जाएगा। और भी केवल इतनी नहीं है, व्यापारियों की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं पूरे व्यापारी समाज से कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, अपने भाई पे भरोसा कीजिए, व्यापारियों को अच्छा माहौल देंगे व्यापार करने के लिए। 10वां, रेडी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, एमसीडी वाले बहुत परेशान, एमसीडी के लोग बहुत परेशान करते हैं, उनके लिए भी जोन्स बनाए जाएंगे, वेंडिंग जोन्स, जो एमसीडी की वजह से अभी तक पास, दिल्ली सरकार ने तो नीति 2-3 साल पहले बना दी थी, लेकिन एमसीडी ने उसको लागू नहीं किया। वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको प्रॉपर लाइसेंस देंगे और उनको
साफ सुथरे वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको भी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, कोई उनसे पैसे वसूली नहीं होगा, उनको एक लीगल कानूनी तौर पे उनको जिंदगी जीने का अधिकार।